کہ خوشبو لائے ہیں پھول لائے ہیں، خوشبو لائے ہیں پھول لائے برکہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ آج آپ کی مدرسے کی عمارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ بڑی مسرت اور بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ حضرات دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے اور ہمارے مولانا ابو نصر صاحب میرے یہاں کی دعوت دینے گئے تھے تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ مذکور کے لوگوں نے بہت کم ایسا پیسہ ہے جو باہر کا ہے اور مذکور کے لوگوں ہی نے اس عمارت کی تعمیر کی ہے۔ یہ آپ کے حوصلے کی بات ہے اور آپ کے جذبے کی بات ہے، دینی جذبے کی بات ہے کہ دینی ادارہ، دینی مکتب کی تعمیر آپ نے کی۔ آپ اس کے اوپر قابل مبارکباد ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت زیادہ نہیں ہے اور ٹھنڈک بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ دو نوجوان عالم ماشاءاللہ بہت تفصیل سے آپ حضرات کو اپنی باتیں بتا چکے ہیں، تو مزید بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو پڑھانے سے مطلب صرف قرآن نہیں ہے بلکہ قرآنی علوم ہے۔ قرآن سے متعلق جتنا علم ہوگا، قرآن ہو یا حدیث ہو، تو قرآن پڑھے یا قرآن پڑھائے، وہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے، کسی مالدار کو، کسی پیسے والے کو، کسی ڈاکٹر صاحب کو، کسی انجینئر صاحب کو، سمجھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر نہیں کہا۔ دیکھیے کوئی انجینئر صاحب یہاں ہوں، کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ ہماری مذمت یا ہماری برائی بیان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر، قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، قوم کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے، لیکن انجینئر صاحب ہو یا ڈاکٹر صاحب ہو، سب سے پہلے انجینئر صاحب کے لیے بھی اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی اور ہر مسلمان کے لیے علم دین ضروری ہے۔ علم دین کیوں ضروری ہے؟ اس کے اوپر ہمارے علماء کرام نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور کتنا علم ضروری ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے، سمجھا۔ تو اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن خود پڑھے اور قرآن دوسرے کو پڑھائے۔ تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کہا ہے۔ یہاں پر وقت اور حالات کے مناسب میں نے ایک اور روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے، اور وہ حالات کے عین مناسب ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، آپ غور سے اس کو سنیے گا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو خطاب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکلف الصغیر الکسب، کہ بچے کو کمانے کا پابند نہیں بناؤ، بچے کو کمانے کا پابند نہیں بناؤ۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، لا تکلف الصغیر الکسب، کہ بچے کو کمانے کا پابند نہ بناؤ۔ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ، اس لیے کہ جب بچے کو تم کمانے کا پابند بناؤ گے اور وہ بچہ کما نہیں پائے گا، مال حاصل نہیں کر پائے گا، تو تمہارا وہ بچہ چوری کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
फरमाया। समझा। आज हमारे अहवाल बहुत ज्यादा खराब हैं। मुसलमानों के अहवाल, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जाहिर बात है कि बच्चा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और कुरान करीम ने बताया है कि वो आंखों की ठंडक है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रिय्यातना क़ुर्रत अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ये इबादुर रहमान, अल्लाह के रहमान के बंदे जो दुआ करते हैं, उसका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ऐ हमारे रब हमारी बीवियों और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। तो औलाद जो है वो आंखों की ठंडक है। औलाद अल्लाह ताला की नेमत है। हुवल्लज़ी खलक़, कुरान करीम के अंदर कहा अल्लाह ताला ने, क्या अल्लाह ताला वो जात है जिसने इंसान को पैदा किया, फजालहु नस्बन व सेहरा, और उसको नसब वाला और ससुराली रिश्ता वाला बनाया। ये नेमत के तौर पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। तो औलाद हमारे आंखों की ठंडक है, औलाद हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो औलाद के सलाह और फलाह की फिक्र हमको होना चाहिए। ये नहीं कि जब औलाद पैदा हुई और जरा चलने फिरने लगी और जरा ताकत और कुव्वत हुई तो हमको फिक्र इस बात की हुई कि वो कैसे हमको कमा के देगा। नहीं, अगर आपने उनको कमाई में लगा दिया और उनकी अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत आपने नहीं की तो वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ आपसे पूछ होगी। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक जो है वो निगरां है और हर निगरां से अब उसके मातहत जो लोग हैं उनके बारे में पूछा जाएगा कि उनके जो हुकूक थे उन हुकूक को तुमने अदा किया या नहीं किया। जाहिर बात है कि बच्चे का हक ये था कि उसकी अच्छी तालीम और उसकी अच्छी तरबियत की फिक्र की जाए, और बजाय अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत और दीन की तालीम के बजाय हमने उनको कमाने में लगा दिया तो जाहिर बात है कि ये बच्चे के साथ जुल्म हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युआकिर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो शख्स हमारे छोटे के ऊपर शफकत और मेहरबानी नहीं करे और हमारे बड़े की ताज़ीम नहीं करे तो वो हमारी जमात से खारिज है। तो बच्चे को जिस तरीके से भूखा रखना ये जुल्म है, उसी तरीके से बच्चे से जो है वो कमवाना ये भी जुल्म है। समझा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ करके मैंने आपको सुनाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि बच्चे से जो है वो कमाया जाए, समझा, पैसा हासिल किया जाए। देखिए, बच्चों से जो माल हासिल किया जाता है और उनको कमाने में लगाया जाता है उसके 3 वजह होती है। एक वजह तो ये होती है, गौर से सुनिएगा, एक वजह तो ये होती है कि वालिदैन बहुत गरीब और तंगदस्त होते हैं। इसकी बना पर जब बच्चा होश का हुआ तो बजाय इसके कि उसकी अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत की फिक्र करते उनको कमाने के लिए भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, बम्बई भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया, बड़े बड़े शहरों में भेज दिया। समझा। वहाँ उनकी क्या गत होती है लोगों को मालूम है, कारखाने वाले उनसे किस तरह से मामला करते हैं और कितना जो है उनसे ताकत से ज्यादा उनसे काम लेते हैं। आप आमतौर से जो मैंने सुना है कि आमतौर से लोग जो है ड्यूटी करते हैं 8 घंटे, लेकिन उस मासूम और छोटे बच्चे से काम लिया जाता 16 घंटा। अब बताइए कि वो बच्चा क्या उसका हश्र होगा। बात है, मैं बता रहा था कि कभी बच्चे को कमाने पर लगा दिया जाता है इसलिए कि उसके वालिदैन तंगदस्त और परेशान होते हैं। समझा। तो इसकी बिना पर कमाने पर लगा देते हैं। दूसरे जो है वो छोटे बच्चे को कमाने पर वो लोग लगा देते हैं जो जाहिल होते हैं और अपने बच्चे के मुस्तकबिल की उनको कोई फिक्र नहीं होती है।
हालांकि उनको कोई मशक्कत नहीं है, समझा, तो बेजानिशी की बिना पर वो अपने बच्चे को कमाने में लगा देते हैं। ये दो तरह के लोग हुए, समझा। एक तो वो जो वाकई क्या है परेशान हाल है, समझा, इसकी बिना पर वो लगा देते हैं, और दूसरे वो हैं जो अपनी बेजानिशी की बिना पर वो जो है अपने बच्चे को क्या करते हैं, वो कमाने के ऊपर लगा देते हैं, समझा। जाहिल वालिदैन अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करते हैं, इसकी बिना पर वो उनको जो है वो लगा देते हैं काम के ऊपर, और वो काम में लगे रहते हैं। देखिए हमारी हुकूमत, आप सभी हजरात जानते हैं, बच्चा मजदूरी के ऊपर हमारी हुकूमत पाबंदी लगाती है, समझा। ठीक है, पाबंदी लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चे से मजदूरी नहीं कराना चाहिए, लेकिन एक पहलू उनके सामने है, दूसरा पहलू नहीं है सामने। एक आदमी जो है तंगदस्त है, अपनी तंगदस्ती की बिना पर वो अपने बच्चे को मजदूरी के ऊपर लगा दे रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको क्या तालीम देते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और से सुनिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरका कल्लन फइलैया, मन तरका कल्लन फइलैया, अमन तरका मालन फलिवरसती। समझा कि अगर कोई शख्स बोझ को छोड़ के मर जाए, बोझ से क्या मतलब है, यानी कोई अपनी बीवी को बेवा छोड़ करके मर जाए, कोई अपने बच्चे को यतीम छोड़ करके मर जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.